دو جوہری طاقتیں جنگ کے دہانے پر آ گئی تھیں۔ آئندہ ایسا ہوا تو حالات درست کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ بلاول بھٹو نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کشمیر کا کسائی اب انڈس ویلی کی تہذیب کا کسائی بن چکا ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ مودی اور نتن یاہو انتہا پسند ہے جو نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے تو دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ پاک فضائی نے بھارت کے 20 طیارے لاک کر دیے تھے۔ ہم چاہتے تو بھارت کے 20 طیارے گرا دیتے لیکن صرف 6 تباہ کیے۔ پاکستان نے بھارتی طیارے گرانے میں بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں نیوز کانفرنس۔ کہا مودی کے پاس دو ہی راستے ہیں، امن یا تباہی۔ بھارت کو مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ پاکستان مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بھارت ہمارا سبق تا قیامت نہیں بھولے گا۔ مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ کوئی حرکت کی تو بھارت کو دوبارہ سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مودی کو دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں جرگے سے خطاب میں کہا بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستان کا حق ہے۔ پانی پر چاروں صوبوں کو دعوت دیں گے۔ فیصلہ کرنا ہے پانی کیسے ذخیرہ کریں۔ خوشحالی کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ عوام اور افواج پاکستان کا ساتھ ملک کی تقدیر بدلے گا۔ جبکہ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت قبائلی عمائدین بھی شریک ہوئے۔ زلزلہ یا انتظامی ناکامی، قیدی فرار، ملیر جیل کے عملے پر قیدیوں کا دھاوا۔ 216 قیدی دیواروں دروازوں سے بھاگ نکلے۔ 138 قیدی قانون کے شکنجے میں نہ آ سکے۔ ہنگامہ آرائی میں ایک قیدی ہلاک، 3 زخمی، 2 FC اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ ملیر جیل میں ہر طرف توڑ پھوڑ کے مناظر، اہلکاروں کے زخمی ہونے سے جیل انتظامیہ لا علم نکلی۔ IG جیل خانہ جات نے سوال کا جواب ہی نہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایکشن، IG جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا۔ DIG جیل اور سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کی بھی چھٹی۔ کھوج لگانے کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم۔ تحقیقات کے بعد مزید افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد قیدیوں کو بیرک سے نکالا گیا۔ قیدیوں کو بیرکوں سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ قیدی 24 گھنٹوں میں خود آ گئے تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پولیس نے پکڑا تو جیل توڑنے کی سزا 7 سال ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے، تاہم یہ بڑے کرمنل نہیں تھے اور اس سے گھبرانے کی بات نہیں۔ چھوٹے جرائم والوں کو ملیر جیل میں رکھا جاتا ہے۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث انٹرنیشنل گینگ پکڑا گیا۔ مظفر گڑھ کے گاؤں دیر پناہ سے 2 افراد گرفتار، جرمن سرگنا فرار ہونے میں کامیاب۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ استحصال کی ویڈیوز ڈارک ویب پر پھیلائی جاتی تھی۔ 50 بچے جنسی استحصال کا نشانہ بنے، 10 بازیاب کرا لیے گئے۔ دیر پناہ میں آپریشن 23 مئی کو کیا گیا۔ گروہ یہ ویڈیوز ڈارک ویب پر ہزاروں ڈالر میں بیچ رہا تھا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی پروفائل قتل کیس 20 گھنٹوں میں حل کر لیا۔ ملزم عمر حیات درندہ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہا، بار بار انکار کیا گیا۔ 6 سے 7 گھنٹوں پر پھر کوشش کی لیکن انکار ہی ہوا اور وہ حیوان بن گیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی طرف سے مسلسل مسترد کرنے پر قتل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملزم کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین۔ ٹریڈ سے کیوں نکالا؟ آباد میں کم عمر گھریلو ملازمہ کو مالکان نے تشدد کر کے مار ڈالا۔ ذیشان نے بیوی کے ہمراہ 12 سالہ عالیہ پر تشدد کیا۔ لاش گاڑی میں ڈال کر لڑکی کے والد کے گھر چھوڑ آئے۔ پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کا ابتدائی تفتیش میں تشدد کا اعتراف، میڈیکل رپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ غریب کے لیے بنا فرعون عدالت میں تھپڑوں کی زد میں رہا۔ سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، جوڈیشل میجسٹریٹ نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان ڈیفنس کراچی میں شہری پر تشدد میں ملوث ہیں۔ وکلاء اور شہریوں نے ملزم کی احاطہ عدالت میں پٹائی کر دی۔
कराची में अमीर ज़ादे के तशद्दुद का शिकार खानदान मंजर-ए-आम पर आ गया। खौफ के मारे गायब हो गए थे। पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। तशद्दुद का शिकार नौजवान सुधीर ने कहा कि आबा ने इत्तिहाद अपनी बहनों को लेने जा रहा था। बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई। एक शख्स ने असलहा के जोर पर गाड़ी में बिठाया। कार सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हम मुआफ़ी मांगते रहे लेकिन किसी को रहम ना आया। सेहत और तालीम के बजट पर कुल्हाड़ा चलेगा। मौसमियाती तब्दीली, रेलवेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में कटौती। 118 मंसूबे खत्म कर दिए गए। वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 114% से ज़ायद इजाफे का फैसला। वजारत दिफा का तरक्याती बजट 11 अरब 55 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में भी इजाफा होगा। पंजाब में बिजली के बिल कम करने का ऐलान। बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम किया जाएगा। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी। बिजली के टैरिफ में 30 से 40% तक हो सकेगी। लाहौर में बस शेल्टर्स की तामीर और मरम्मत और अपग्रेडेशन की मंजूरी। ठोकर न्याज बेग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 40 करोड़ ग्रांट मंजूर। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरेंडर का नाम दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी को ट्रंप का फोन आया। मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने फौरी सरेंडर कर दिया। मोदी ने जी हजूर कहकर ट्रंप के फोन पर अमल किया। भारतीय जारहियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। कहा, मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हमायत जारी रखी जाए। बिलावल भुट्टो का खित्ते में कशीदगी कम करने, सालसी और जंग बंदी के लिए OIC से इजहार तशक्कुर। तारिक फातमी की मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ुर में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलोचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DDI SPR की हलाल टॉक्स प्रोग्राम 2025 में मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बलोचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ध्यामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब। कहा, पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़राअत के लिए दरकार पानी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ध्यामर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने हेल्पलाइन सेंटर, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरों को साइबर क्राइम से मुतअल्लिक शिकायत के जल्द इज़ाले की हदायत। वज़ीर दाखिला ने NCCI हेडक्वार्टर्स की इमारत का अपग्रेडेशन प्लान भी तलब कर लिया। नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम दोबारा बहाल करने की भी मंजूरी।
नौजवान नस्ल में सिगरेट का बढ़ता रुझान, पंजाब में वेब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में वेपिंग सेंटर्स को बंद करने के हुक्म, जिला इंतजामी को क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर में वेपिंग सेंटर्स बंद कराए जाएंगे। कराची के जिला मलीर और कोरंगी जलजलों की जद में 12 मरतबा जमीन लरजने के बायस शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुतासरा इलाकों में कायदाबाद, मलीर, लांडी, शेरपाव और अतराफ के इलाके शामिल हैं। आज सुबह आने वाले जलजले का मरकज शुमाल मशरिक था। जलजले की शिद्दत 2.8, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से अजानें भी दी गई। मनासिक हज का कल से बाकायदा आगाज। मक्का से आज़मीन हज एहराम में आज रात मिना के लिए रवाना होंगे। आज़मीन एहराम बांधने के बाद 2 रकत नफल अदा करके हज की नियत करेंगे। आज़मीन कल मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़े अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर, असर की नमाजें अदा करेंगे। मगरिब से कबल हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा जाएंगे। हुज्जाज कराम रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुज्जाज कराम वापस मिना के लिए रवाना होंगे। रमी जमरात करेंगे। रमी के बाद कुर्बानी की जाएगी। ईद में 4 दिन बाकी, काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खूबसूरत जानवरों के लिए भाव-ताव जारी। चोटी के जानवरों के रेट भी चोटी के। बकरे, दुम्बे, छतरी और ऊंट भी तवज्जो का मरकज। रूस और यूक्रेन में जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। इस्तंबुल में फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। रूस ने यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों का गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में सिर्फ कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक हो सका। यूक्रेन ने सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ और रूस भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त रूसी हुकाम को दे दी। मुज़ाकरात में अमन शराइत पर मबनी याददाश्तों का तबादला हुआ। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त सैयद क़यामुद्दीन के नाम से हुई। कत्ल की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। इटली के दारुल हुकूमत रोम में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले आयरलैंड के फाइटर ने इसराइली हरीफ का बरकस निकाल दिया। मुकाबला जीतने पर आयरलैंड के फाइटर 27 साला पैटी मैकोरी के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। पैटी मैकोरी ने इसराइली हरीफ को ज़मीन पर गिरा कर मारते हुए फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। मुकाबले के बाद पैटी मैकोरी ने फ़लस्तीनी परचम जिस्म पर लपेट लिया।